आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡಬಾರದು. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆದರಿಸಲು ಅಥವಾ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ನನ್ನ ದೇಶವು ಹಲವಾರು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಈಡೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 30-40 ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 40-50 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ರಜೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ 100 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ PM ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2047ರ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ, ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಸ್ವತಃ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे। तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ। मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा। मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी पे पूछना था मुझे। हाँ। अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ। और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग NGO को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने AI की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया। उसका काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसा हो सकता है अगले टर्म के लिए 25 साल के लिए। 25। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन दिए 2-2, 2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें
डुएबल नहीं थोड़ा सा है। ट्रेलर बता सकते हैं? उसको मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। जी। लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित किया। एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है। जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके। मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे। स्टेट को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी? नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके। ये काम देश का है। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा है कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आया उसका आधार और मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया इसमें। उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना के अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। यूएपीए बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में किया। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपया लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूँ, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन क्या काम करना वो हैफाजत नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चला।